Hello students, welcome back to English Master. Today we are going to learn part 2 of chapter Lost Spring, which is from Flamingo of class 12th English. So in the very first part we had covered about the story of a boy named Sahib-e-Alam who was a rag picker and he lived in Simapuri, an outer skirt area of Delhi, and he picks the rags and he earns his living and he lives with his family and he has come from Bangladesh. So writer keeps on asking questions and here is the description of the same. So let us begin with part 2. I sometimes find a rupee, even a 10 rupee note. Sahib says, his eyes lighting up. तो साहिब कहता है कि समटाइम्स ही कैन गेट अ रुपी ऑल्सो एंड समटाइम्स ही गेट्स 10 रुपीज़ ऑल्सो. उसे वहाँ कचरे में मिलते हैं. When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging for there is a hope of finding more. तो कहता है ये एक लालच जैसा है, जब मुझे कोई एक कॉइन मिले तो लगता है इस गार्बेज में और भी बहुत कुछ मिलेगा. तो स्क्राउंजिंग मीन्स होता है हाथों से ढूंढना, लगातार उसको कुरेदना. So he says that he likes to keep on scrounging because he hopes for more, and that brings a lot of curiosity which keeps him binding and he loves doing this work. It seems that for children garbage has a meaning different from what it means to their parents. पेरेंट्स के लिए, दिस इज़ ऑन अ सीरियस नोट, पेरेंट्स के लिए ये जगह जो होती है अच्छी नहीं है. उनके लिए ये एक ऐसा मीन्स ऑफ सर्वाइवल है जो बिल्कुल भी उन्हें पसंद नहीं है. लेकिन बच्चों के लिए ये बहुत उत्सुकता है, वो इसमें जाकर ढूंढना, और कोई महंगी चीज़ अगर इस सामान में मिल जाए तो उनके लिए वो एक रिवॉर्ड जैसा होता है. फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वंडर, फॉर द एल्डर्स इट इज़ अ मीन ऑफ सर्वाइवल. तो बच्चों के लिए ये क्या है, सिर्फ वंडर्स में रैप्ड है, ढका हुआ है कि अब जाने क्या मिल जाए. लेकिन बड़ों के लिए यही मीन्स ऑफ सर्वाइवल है, इसी से उनका जीवन यापन चलता है. सो इन दिस पैराग्राफ राइटर सेज that for the children garbage is a wonderful place where they can find a lot of things which keeps on making them curious and collecting and keeping with them. But on the other hand, it is means of survival for the parents, even if they do not like, but still they have to go and scrounge as they cannot survive without it. One winter morning, I see Sahib standing by the fenced gate of the neighborhood club, watching two young men dressed in white playing tennis. तो कहती है एक मॉर्निंग थी, विंटर मॉर्निंग थी, मैंने देखा साहिब जो था एक दीवार जो फेंस्ड थी, दीवार थी गेट की चारों तरफ से कवर की हुई, वहाँ वो क्लब के बाहर खड़ा हुआ था और उसने दो लोगों को वाइट यूनिफॉर्म में देखा, ड्रेस्ड थे वो, जो टेनिस खेल रहे थे. आई लाइक द गेम, he hums, content to watch it standing behind the fence. और वो वहाँ फेंस के पास, दीवार के पास वहीं खड़े होकर उसको लगातार देखकर ही संतुष्ट हो जाता है. I go inside when no one is around. और वो कहता है कि जब यहाँ कोई नहीं होता तब मैं अंदर जाता हूँ. He admits, वो इस बात को स्वीकारता है. The gatekeeper lets me use the swing. और gatekeeper मुझे झूले में बैठने देता है. So here he tells Sahib that he has also some interest. He wanted to play tennis, but that is out of his reach. So what he does when he cannot reach the club, what he does, he goes when there is nobody around, and he goes and he has only one thing, that he can go and swing on the swing. तो इस तरह से वो अंदर जाकर वहाँ झूले पर बैठ के झूला झूलता है. Sahib too is wearing tennis shoes that look strange over his discolored shirt and shorts. साहिब का जो आउटफिट है उसने टेनिस के शूज पहने हुए हैं और एक डिसकलर जो फेडेड शर्ट है वो, और उसने छोटे शॉर्ट्स पहने हुए हैं. Someone gave them to me, he says in the manner of an explanation. और वो मुझे बताता है कि किसी ने उसको ये गिफ्ट किए थे. The fact that they are discarded shoes of some rich boy. और वो किसी डिस्कार्डेड मीन्स छोड़ दिए गए, यूज्ड किए हुए, किसी के यूज़ करने के बाद दिए हुए, वो एक रिच बॉय के शूज़ थे. हु परहैप्स रिफ्यूज्ड टू वेयर देम बिकॉज ऑफ अ होल इन वन ऑफ देम. उनमें से एक शू में जो था होल हो गया था, इसलिए उस बच्चे ने शायद मना कर दिया होगा पहनने से.
तो उसकी माँ ने उसे वो गिफ्ट कर दिए थे। डज नॉट बॉदर हिम, उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर वन हु हैज वॉक्ड बेयर फुट, क्योंकि ऐसे लोगों को क्या फर्क पड़ेगा जो बेचारे नंगे पांव घूमते हैं। इवन शूज विद अ होल इन इज अ ड्रीम कम ट्रू, अगर उन्हें एक जोड़ी शू मिल जाए चाहे उसमें होल भी हो, लेकिन उनके लिए ऐसा है जैसे कोई ड्रीम सच हो गया हो। बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंटली इज आउट ऑफ हिज रीच, लेकिन वो जो गेम जिसे वो देख रहा है, टेनिस का गेम जो वो दीवार के पास खड़े होकर देख रहा है, वो उसकी रीच से या उसकी पहुंच से बाहर है। सो राइटर टेल्स even discarded things of the rich people also fulfill the desires or dreams of many children like Sahib-e-Alam because they cannot afford. So he tells that remaining barefooted was worse rather than wearing a shoe with a hole in it. This is how he says that these are the dreams, small dreams that can come true with the help or the resources of rich people, but playing tennis in the club is out of their reach. Let us go ahead with next paragraph. This morning Sahib is on his way to the milk booth. In his hand is a steel canister. I now work in a tea stall down the road. आज सुबह मैंने देखा साहिब जो था मिल्क बूथ पे जा रहा था और उसके हाथ में एक स्टील का कैनिस्टर है, डब्बा है, और अब उसने बताया मुझे मालूम था कि वो अब एक टी स्टॉल में काम करता है। He says, पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, कुछ दूरी की तरफ वो इशारा करके बताता है, आई एम पेड 800 रुपीज एंड ऑल माई मील्स, मील्स इज अ फूड। तो उसने कहा कि मुझे सारे टाइम का खाना और 800 रुपये पर मंथ यहाँ से मिलता है। डज ही लाइक द जॉब, तब उससे पूछा गया क्या उसको ये जॉब पसंद है। आई आस्क्ड, राइटर ने पूछा। हिज फेस आई सी हैज लॉस्ट द केयरफुल लुक, और अब मैंने जब उसके चेहरे को ध्यान से देखा तो जब वो पहले मुझे मिलता था तो वो बहुत केयरलेस दिखाई देता था, और लेकिन अब उसके चेहरे से वो जो केयर फ्री लुक थी वो गायब हो चुकी थी। क्यों? क्योंकि अब वो किसी का अंडर में काम कर रहा था, वो अपने मन का मालिक नहीं था। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली, इसीलिए स्टील कैनिस्टर जो था वो उसको हैवी लगता था, बिकॉज ही हैड टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, गो एंड लिसन टू द मास्टर for the work he will give him, and he had to return in the time he would send him back. So this was a kind of job which he did not like because it was binding him for a long period of time over his shoulder, इसीलिए उसे वहाँ रहना पसंद नहीं था। The bag was his, वो बैग उसका था। The canister belongs to the man who owns the tea shop, और उसे किसी के अंडर में काम करना पसंद नहीं था, इसलिए वो कहता है कि ये कैनिस्टर उसको बिलोंग करता था जो उस शॉप का ओनर था। साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, और जब उसके पेरेंट्स ने उसको स्क्राउंजिंग ऑफ गोल्ड या फिर कचरे के ढेर में जाना छुड़वा दिया तो वो उसे पसंद नहीं आया, क्योंकि अब उसे एक टी स्टॉल में किसी के अंडर काम करना पड़ता था। तो शायद यही उनका फ्यूचर था, इससे आगे वो ज़्यादा नहीं सोच सकते थे, ना ही इससे ज़्यादा वो बढ़ सकते थे। तो ये स्टोरी यही एंड होती है और हमें पता लगता है कि दे आर कॉट इन अ वेब ऑफ पॉवर्टी फ्रॉम वेयर दे कैन नॉट come out, and hardly if they get a job, the jobs are kind of tea stalls or the places where these kind of chotus work. So this Sahib-e-Alam finishes his story here, and he has the same kind of feature which will be continued by the children like Sahib-e-Alam. Now let us go another story with another story which also touches the heart and tells us that how they have been deprived from their childhood and how they are facing the difficulties in life. तो ये कहानी है मुकेश की, और उसका ड्रीम है कि आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, कि मैं कार ड्राइवर बनूं। मुकेश इंसिस्ट्स ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, मुकेश को अपना खुद का मास्टर बनना है। लाइक ही डजंट ऑल्सो वॉन्ट टू वर्क लाइक साहिब-ए-आलम अंडर इन द ओनरशिप ऑफ एनीबडी एल्स। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, ही अनाउंसेस, वो कहता है मुझे मोटर मैकेनिक बनना है। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, आई आस्क्ड। तो राइटर ने उससे पूछा क्या तुम्हें कार्स के बारे में कुछ पता है। आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, ही आंसर्स लुकिंग स्ट्रेट इन टू माई आईज, मेरी आंखों में झाँक कर वो कहता है मैं सीखूंगा चलाना। हिज ड्रीम्स लूम्स लाइक अ मिराज अमिडस्ट डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स दैट फिल हिज ओन टाउन फिरोजाबाद, फेमस फॉर इट्स बैंगल्स,
और यहाँ पर उसके सपने जो हैं वो ऐसा लगता है धूमिल हो रहे हैं इन गलियों में। कौन सी गलियों में? फिरोजाबाद की गलियों में, जहाँ पर वो रहता है। और फिरोजाबाद जो है वो बैंगल्स बनाने के लिए फेमस है। तो दिस चाइल्ड बिलोंग्स टू अ फैमिली हु इज अ बैंगल मेकर फैमिली, एंड द पीपल here are also deprived and they live in the poverty and they keep on living the same life. There is no change, even the generations have changed, but still they are leading the same kind of life. Here the child Mukesh wants to bring a change in his life and he doesn't want to continue with the same work which his parents were doing. Instead he wants to become a motor car driver or the motor mechanic. It is the center of India's glass blowing industry, where families have spent generations working around furnaces, welding glass, making bangles for all the women in the land, it seems. तो राइटर कहता है कि ये वो जगह है जहाँ पर ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, जहाँ पर बहुत सारा शीशा इकट्ठा होता है। जनरेशन्स गुजर चुकी हैं जो भट्टियों के आगे बैठकर काम करती हैं, ग्लास शीशे को वेल्डिंग करते हैं और उससे वो चूड़ियाँ बनाते हैं जो कि वुमेन के लिए पूरे दुनिया में पहनी जाती हैं। सो दिस प्लेस इज वेरी फेमस फॉर बैंगल मेकिंग एंड स्टोरीज बीइंग टेकन फ्रॉम फिरोजाबाद इटसेल्फ। मुकेश फैमिली इज अमंग देम, उन्हीं परिवारों में से एक परिवार मुकेश का है। नन ऑफ देम नो दैट इट इज इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस विद हाई टेम्परेचर्स। कोई नहीं बताता उन्हें कि ऐसे हाई टेम्परेचर जहाँ पर शीशे को पिघला कर चूड़ियों का शेप दिया जाए तो ये इलीगल है बच्चों से ऐसी जगहों पर काम कराना। इन डिंजी सेल्स, डिंजी मीन्स डर्टी, द वन विच आर फिल्ड विद स्मोक, विदाउट एयर एंड लाइट, ना वहाँ पर रोशनी है ना हवा है। दैट द लॉ if enforced could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours. अगर गवर्नमेंट चाहती तो इन 20,000 बच्चों को ऐसी गर्म भट्टियों के पास से निकाल लाती जो बेचारे वहाँ पर तपते हैं, अपने सारे डे लाइट जो है वो अंधेरों में बिता देते हैं। often losing the brightness of their eyes, और अक्सर बच्चे उनमें से अपनी आंखों की आईसाइट भी खो देते हैं। मुकेश आईज बीम एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम। राइटर बताती है कि वो मुकेश के साथ जब उसके घर जा रही होती है तो उसकी आंखें चमक रही होती हैं, विच ही प्राउडली सेज इज बीइंग रीबिल्ट, और वो बहुत गर्व के साथ बताता है कि ये घर उसने दोबारा से बनवाया है। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स चोक्ड विद गार्बेज, पास्ट होम्स दैट रिमेन hovels with crumbling walls, wobbly doors, no windows, crowded with families of humans and animals coexisting in a primeval state. तो राइटर यहाँ डिस्क्रिप्शन देती है उस जगह का जहाँ वो बच्चा रहता है और उस गली का और उसके घर का, किस तरह के लोग वहाँ पर रहते हैं। वो बताती है कि जब हम जैसे ही उस लेन में, उस एरिया में जाते हैं जहाँ लाइन लाइन घर बने हुए हैं, वो जगह लगती है जैसे कचरे से चोक हो चुकी है, भरी हुई है। घर पीछे की तरफ हॉवल्स हैं, उनकी दीवारें क्रम्बलिंग है जिसपे से सीमेंटेड प्लास्टर जो है वो सब छूट चुका है। वॉबली डोर्स, वॉबली मीन्स होता है चौखटों से हिलना, दरवाजे चौखटों में हिल रहे हैं, विंडोज़ नहीं है। फैमिलीज जो है वो क्राउडेड है, उसमें ह्यूमंस और एनिमल्स को एग्जिस्टिंग साथ में रह रहे हैं और बहुत बुरी कंडीशन में रह रहे हैं। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, ऐसे ही एक दरवाजे पर वो रुकता है। बैंग्स अ वॉबली आयरन डोर विद हिज फूट, और अपने पैर से एक ऐसे ही हिलते हुए दरवाजे को धक्का मारता है। एंड पुशेस इट ओपन, और वो दरवाज़ा खुल जाता है। वी एंटर अ हाफ बिल्ट शैक, और एक हम आधे बने हुए घर में घुसते हैं। इन वन पार्ट ऑफ इट थैच्ड विद डेड ग्रास, एक हिस्सा जो है उसकी रूफ पर डेड ग्रास लगाई हुई है। इज अ फायरवुड स्टोव ओवर विच सिट्स अ लार्ज वेसल ऑफ सिजलिंग स्पिनच लीव्स, और राइटर बताती है कि जब वो देखती है तो जिस हिस्से में वो थैच्ड है उस हिस्से में एक स्टोव रखा है और उस पर पालक उबल रही है। ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, और वो देखती है कि कुछ बड़ी प्लेट्स एल्यूमिनियम की रखी हैं जिनमें सब्जी चॉप की हुई रखी हुई है। अ फ्रेल यंग वुमन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली। फ्रेल मीन्स होता है घूंघट, अ लॉन्ग कवर दैट कवर्स द फेस ऑफ अ लेडी।
तो वो अपने दुपट्टे को लंबा खींचकर अपने घूंघट से ढके हुए है और वो शाम का भोजन बना रही है पूरी फैमिली के लिए। थ्रू आईज फिल्ड विद स्मोक शी स्माइल्स, उसकी आंखों में धुआं भरा हुआ है क्योंकि घर में कहीं भी एयर ही नहीं है वो। शी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, वो मुकेश की भाभी है, उसके बड़े भाई की वाइफ है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, शी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, उसकी उम्र ज़्यादा नहीं है लेकिन वो उस घर की रिस्पेक्टेड बहू है। द डॉटर इन लॉ ऑफ द फैमिली हाउस, उस घर की डॉटर इन लॉ है। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, उसके घर में 3 आदमी हैं जिनकी वो देखभाल करती है, हर हस्बैंड मुकेश एंड देयर फादर। When the older man enters, she gently withdraws behind the broken wall and brings her veil closer to her face. और जैसे ही घर का फादर अंदर आता है तो वो दीवार के पीछे हो जाती है और अपने वेल घूंघट को अपने चेहरे पर और लंबा ढक लेती है। As custom demands, daughter-in-laws must veil their faces before male elders. तो ये उनका कस्टम है, इट इज़ अ ट्रेडिशन कि जब घर में मेल आते हैं तो फीमेल्स को अपने चेहरे को, बहुओं को स्पेशली अपना फेस कवर करना होता है। सो एज पर द कस्टम शी ऑल्सो कवर्स हर फेस। इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्प्रोविज्ड बैंगल मेकर, और इस घर में भी जो लगातार इसी कामों में फंसे हुए हैं, इनके घर का बड़ा भी बैंगल मेकर है। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, फर्स्ट एज अ टेलर देन अ बैंगल मेकर, ही हैज़ फेल्ड टू रिनोवेट अ हाउस। वो बताती है उसकी लाइफ, उसने भी कठिन परिश्रम किया, पहले टेलर था फिर बैंगल मेकर बना, लेकिन उसके बाद भी वो अपने घर को इवन रेनोवेट भी नहीं करवा पाया। सेंड हिज 2 sons टू स्कूल्स, अपने दोनों बेटों को स्कूल भेजता है। ऑल ही हैज़ मैनेज टू डू इज टू टीच देम व्हाट ही नोज, और वो बस इतना ही कर पाता है कि जो उससे आता है वो बेचारा उन्हें सिखा देता है। और वो क्या आता है? द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, वो उन्हें भी बैंगल्स बनाना सिखा रहा है। तो यहाँ भी हमें पता चलता है कि वो एक बार जिस काम में फंस गए वो वहाँ से चाह कर भी नहीं निकल पाते हैं। दे हैव ऑल्सो डार्क फ्यूचर, इवन इफ दे ट्राई हार्ड दे कैन नॉट ब्रिंग अ चेंज इन देयर लाइफ। It is his karam, his destiny, says Mukesh's grandmother, who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles. तो मुकेश की दादी माँ कहती है यही कर्म है, यही हमारा भाग्य है। और उसने भी अपने हस्बैंड को खो दिया जो अपनी आंखें खो चुका था, क्योंकि वो भी पॉलिशिंग करता था बैंगल्स की, और वहीं उसकी डस्ट घुसने से उसकी आंखों की रोशनी जा चुकी थी। कैन अ गॉड गिवन लीनिएज ओवर एवर बी ब्रोकन, तो वो एक क्वेश्चन उठता है कि ये जो गॉड गिवन लीनिएज है, ये एक के बाद एक जनरेशन इसी पॉवर्टी के, इसी वेब में फंसी हुई है, क्या ये कभी टूटेगी? क्या हम इस चीज़ से, चेन से आज़ाद हो पाएंगे? शी इम्प्लाइज बोर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स, ये बैंगल मेकर बनकर पैदा हुए और अपनी लाइफ में उन्होंने बैंगल्स के सिवा कुछ नहीं देखा। इन द हाउस, इन द यार्ड, इन एवरी अदर हाउस, एवरी अदर यार्ड, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, ये सब जगह राइटर बताती है चूड़ियाँ ही देखने को मिलती हैं। स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स, सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बोर्न आउट ऑफ द 7 colors ऑफ द रेनबो। राइटर कहती है जो भी प्यारे कलर रेनबो में होते हैं वो सारे कलर्स हम इन चूड़ियों में देखने को हमें मिलते हैं। लाई इन माउंट्स इन अनकेप्ट यार्ड्स, और ये ढेर लगे रहते हैं आंगनों में। आर पाइल्ड ऑन 4 wheeled हैंडक्राफ्ट कार्ट्स पुश्ड बाय यंग मेन अलोंग द नैरो लेन्स ऑफ द शैंटी टाउन, और लोग इन्हें कार्ट्स में रख के, 4 पहियों वाली कार्ट में रख के उन्हें धक्या के ले जाते हैं, जैसे एक रोड साइड स्टैंड होता है उस तरीके से उसे पुश करके ले जाते हैं। और हर जगह आपको चूड़ियाँ ही देखने को मिल सकती हैं। एंड इन डार्क हंटमेंट्स नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स, और अगर उनकी बिल्कुल कॉन्ट्रेरी क्या है, उनके घर हैं जो बेचारे अंधेरों में रहते हैं और उनके घरों में जो ऑयल लैम्प है उनकी रोशनी फड़फड़ा रही होती है। Sit boys and girls with their fathers and mothers welding pieces of colored glass into circle of bangles, और ये बच्चे अपने पूरी फैमिली के साथ बैठकर बेचारे इस अंधेरे में, इस फड़फड़ाती हुई रोशनी में चूड़ियों को सर्कल का शेप देते हैं।
Their eyes are more adjusted to the dark than to the light outside. अंधेरे में काम करते करते वो हैबिचुअल हो चुके हैं और उनकी आंखें अंधेरे में एडजस्ट हो चुकी हैं. That is why they often end up losing their eyesight before they become adults. इसीलिए ज़्यादातर क्या होता है, बेचारे जब तक वो एडल्ट होते हैं, जब तक वो अपनी जीवन में सही तरह से प्रवेश करते हैं, तब तक वो अपनी आई साइट खो चुके होते हैं. सो दिस इज अ वेरी क्रिटिकल कंडीशन ऑफ द इवन यंग चिल्ड्रन, बिकॉज द फैमिली मेंबर्स, द हेड ऑफ द फैमिली कैन नॉट survive because the amount which he gets after bangle making is too low, which cannot be helpful for the survival of a family. So he asks even the children who are very small to help out to bring some amount of money in their family. This is how even the young children also lose their eyesight. So that's all, boys and girls. We will cover the other part of the story in part 3. If you like the video, do subscribe the channel and get more updates. We'll continue with the other session. Till then, take care.